Hello friends, another very important topic for you. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। कंज्यूमर एंड बिजनेस मार्केट। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कंज्यूमर मार्केट क्या है, बिजनेस मार्केट क्या है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और दोनों के नेचर क्या है। So I am going to explain about this consumer market and business. I hope that you must like it like other previous lessons. This is the sixth lesson in a row. You must have enjoyed earlier lessons also. So what is consumer market and what is business market? What is the difference? Usually the word market conjures up the image of a place used for buying and selling goods. Market का क्या मतलब है कि जहाँ पे buying और selling हो, खरीदते हैं और बेचते हैं, market का ही मतलब है. Generally people understand like this. However, this is just a superficial definition of a highly diversified system that witnesses the coming together of myriad businesses and varied consumers involved in different transactions. ये एक superficial definition हुआ ना, market, buy, sell, that's all, एक layman की तरह. But in the actual market, how many consumers are there? Do you know that? It is infinite. And how many people are selling that? And in the consumers, some are individual consumers, some organizations are there, some companies are there, some group of people are there, so many things are there. तो कितना ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा और विशाल चीज है. तो हम इसे इस तरह से समझेंगे कि जो इंडिविजुअल है उसे एक ग्रुप कर दें और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, वो जो खरीदती हैं उसे एक अलग कर दें. It is difficult to understand industry jargon because it can confuse the layperson. तो ऐसे जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं उससे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है. तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर. इसको कंज्यूमर मार्केट बोलते हैं. As you are seeing in the photo, many individual customers are there. They are buying products. A consumer market is a dedicated space recognized as the sales market where different businesses sell directly to the end customers who consume the products and known as B2C. एक स्मॉल ग्रोसरी शॉप में आप जाते हो, आप टूथपेस्ट खरीदते हो, कुछ अनाज खरीदते हो, चावल दाल गेहूं, ये जो आप खरीदते हो, जो ट्रांजैक्शन होता है, ये कंज्यूमर मार्केट. सो दिस इज कॉल्ड B2C. Businesses operating in the market create segments of customers based on their demographics and psychographics to attract their attention. यहाँ पे कंज्यूमर्स का हम सेगमेंट्स बनाते हैं किस बेसिस पे? डेमोग्राफिक या साइकोग्राफिक. डेमोग्राफिक क्या हुआ? उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, उस किस ज्योग्राफी में है, दिस थिंग्स, दैट इज डेमोग्राफी. उसका साइकोग्राफिक्स क्या हुआ? जैसे हम किसी चीज का वैल्यू ऐड करते हैं, हो सकता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो, बट पीपल बाय दैट. उनको ये फील होता है कि ये खरीदने से हमारा एक स्टेटस बढ़ जाएगा, या कुछ ऐसा चीज है जो उन्हें लगता है कि हमारी जिंदगी की एक ख्वाहिश है कि हम ये लेना चाहते हैं, या अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, रेमंड्स का शर्ट, या फिर मर्सिडीज कार, या टू स्टे इन अ 5-star होटल, like these things. For example, a retail business selling anti-aging cream to women between 30 and 60 years. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे मार्केट सेगमेंट बनाते हैं कंज्यूमर मार्केट में. एक एंटी एजिंग क्रीम किसको बेचेंगे भाई? वीमेन को बेचेंगे, और वो भी 30 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप में. या फिर टूर एंड ट्रेवल बिजनेस सेलिंग हॉलीडे पैकेजेस टू फैमिलीज एंड ग्रुप्स. उन्हीं को इनकी जरूरत है
और किस इनकम ग्रुप को टारगेट करना है. This way you define the market segment and then you promote your sales. This is consumer market. Some more points here. Businesses in the consumer market use highly targeted marketing efforts and promotions to influence them to purchase the products. We have already discussed the 4 P's: product, price, place, and promotion. See, all these 4 are strategies of the company. कंपनी पूरी एड़ी चोटी लगा देती है उसमें कंज्यूमर का दिल जीतने के लिए. प्राइस हो, प्रमोशन हो, विजिबिलिटी या डिस्काउंट या कुछ भी, कूपन्स, स्क्रैच कार्ड, समथिंग, और प्लेस, दैट इज नेटवर्किंग, डीलर्स, it should be available near the customer. So all these schemes or whatever the strategies are there that company is applying to win the customers, to acquire the customers. The marketing approach is based on data collected through market research that includes surveying potential buyers, analyzing competitors, and identifying gaps in the market. Consumer market में ऐसी मार्केटिंग करते हैं ना, पहले सर्वे करते हैं, पता करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस एज ग्रुप, किस मार्केट सेगमेंट के लिए उपयुक्त होगा, उसको टारगेट करते हैं. फिर हम कंपटीटर को एनालाइज करते हैं, हम उसकी नज़र में हम किस लेवल पे पहुंचेंगे वो भी हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे गैप है, इन व्हाट गैप वी शुड प्लेस द प्रोडक्ट. गैप को आइडेंटिफाई करने से आप अपना प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पोजीशन कर सकते हो. It is the standard approach used by startups and aspiring entrepreneurs looking for a profitable business if they are selling to end consumers. This is the standard approach. यही सिस्टम है मार्केटिंग करने का इन कंज्यूमर मार्केट. Now come to business market. What is a business market? A business market is another specifically organized sales market where businesses sell to other businesses instead of end consumers. एक कंपनी दूसरे कंपनी को प्रोडक्ट बेचती है. कैसे बेचती है? एक छोटा सा एग्जांपल देख लो. एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो हो सकता है सारे प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते हैं, बेसिक चीज हम बनाते हैं, शीट मेटल का काम करते हैं, गियर बॉक्स बनाते हैं, इंजन बनाते हैं, उसमें स्टीयरिंग वगैरह सब हम बनाते हैं, ब्रेक्स बनाते हैं, लेकिन उसका टायर हम नहीं बनाते, उसका FI पंप हम नहीं बनाते, उसमें सेल्फ मैं नहीं बनाता भाई. तो वो कहाँ से लाएंगे? एक दूसरी कंपनी से खरीदेंगे. What are they called? They are suppliers. So these suppliers will sell the product to us and we will assemble it in our product and then sell it to the consumer. So this kind of business market is there. A buying businesses procure these goods or raw material to produce new products and services. Yes, just now I explained you. It is also known as business to business or B2B market. In this market, products are sold as well as rented to other businesses. आप B2B में सेल भी करते हो और नहीं तो रेंट पे भी आप दूसरे को देते हो. You are giving some product to some agent and that agent is giving on rent to the end consumer. Like combine harvester, have you seen that? Combine harvesters are not bought by the farm owner for whom the machine is harvesting. मान लो मैं किसान हूँ, मेरे खेत हैं, हमारे पास 1 एकड़ 2 एकड़ खेत है. अब उसके लिए कंबाइन हार्वेस्टर में 25-30 लाख का नहीं खरीदूंगा. मैं क्या करूंगा? मैं इस खेत की हार्वेस्टिंग के समय जो मशीन का ओनर है उससे किराए पे लेके चलाऊंगा. तो हो सकता है वो जो मशीन देने वाला है वो भी खरीदा नहीं हो, वो किसी कंपनी से हायर किया हो, रेंट पे लिया हो, and then that service is given to me. So this is business to business. एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को दे रहा है
मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है. सो दिस इज B2B. It can be raw materials, not only finished goods. Another point, let us see the buyers in a business market include producers and resellers, or in simple term, wholesaler and retailers. B2B में प्रोड्यूसर भी बेच सकता है या फिर वो किसी एजेंट को देकर उसके थ्रू भी बेच सकते हैं, यानी जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है. Producers create new products out of the goods acquired from other businesses, while resellers sell the same product to end customer without any modification. Producers हो सकता है कि हम जो goods बेच रहे हैं किसी और से हम खरीदें और उसमें कुछ एडिशन करें, कुछ और आइटम्स ऐड करें, वैल्यू एडिशन भी हो गया, एंड देन वी सेल इट टू द कस्टमर. एंड रीसेलर्स क्या करता है, वो बस हमसे लेता है और तुरंत भेज देता है. तो कंज्यूमर्स यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको या तो कंपनी बेचती है या फिर रीसेलर यानी इंटरमीडियरीज लाइक होलसेलर, रिटेलर्स आर सेलिंग. Examples of entities operating in the business market include construction companies, agriculture ventures, and transportation services. There is some platform, as you are saying, the app, no, nowadays. Through that platform, you can get the ideas or the availability of the different products, and you can have the information, what are the features and what is the cost. Then you can decide to get it. If you want to buy, you can get the details through the app. It should not be confused with the C2C business model that involves customers selling to other customers via a third party online. C2C is different thing. एक कस्टमर फिर उसको दूसरे कस्टमर, जैसे OLX के थ्रू लोग बेचते हैं ना, एक कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट को फिर दूसरे कस्टमर को बेच देते हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे बिजनेस यानी बिजनेस organization is selling products to another business organization. Here we have made one chart. It is very much clear what is the difference between B2B and B2C. Questions can come like that. So you should understand it one by one. First thing is number of buyers. B2B में number of buyers बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत valuable होते हैं. बहुत कम होते हैं और बहुत valuable होते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? एक ही कस्टमर है लेकिन लेगा करोड़ों में. सप्लायर जो पार्ट्स देता है, सब असेंबलीज अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे पार्ट्स को एक जगह लेकर और असेंबल करता है. सपोज यू आर मेकिंग कार एंड यू आर टेकिंग सम सेमी असेंबलीज फ्रॉम अदर producers and you are making final car in your plant and selling it to the customer. तो यहाँ पे जो buyers होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं लेकिन उनका वैल्यू ज़्यादा होता है. यानी सप्लायर के लिए ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो बेच रहा है वो एक या दो ही है, लेकिन वो पूरा एकदम से पूरे साल का कोटा वो दे देता है. तो सप्लायर का बिजनेस भी जो कार की कंपनी है उस पे चलता है. अगर वो नहीं चली तो इसका भी बिजनेस ठप हो जाएगा. तो वेरी फ्यू बायर्स बट द वेरी वैल्यूएबल एंड दिस बाय इन बल्क, वेरी हाई वैल्यू, एंड दे आर आल्सो स्कैटर्ड इन थ्रूआउट द कंट्री. Geographically it is very difficult to have one place. कोई इधर पंजाब में है, कोई उधर बेंगलोर में है, कोई उधर फिर महाराष्ट्र में है. तो all these different places, but you have to supply, but you will get good potential market, but not in one place. It is scattered. This is the nature of B2B. B2C क्या है? Large number of buyers
and identified by the sellers in specific locations. स्पेसिफिक लोकेशन पे आप टारगेट मार्केट पहले से उसकी खाका खींच लेते हो, सेगमेंट ये है, ये ज्योग्राफी है, यहाँ पे हम इन डीलर्स को यहाँ पर बेचने के लिए सेलेक्ट किया है. तो यू आर ऑलरेडी प्लान्ड वे ऑफ डूइंग वर्क एंड यू कैन एड्रेस इट थ्रू द इंटरमीडियरीज. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और वैल्यू इंडिविजुअल खरीदते हैं इसलिए उनका कम वैल्यू होता है. ईच इंडिविजुअल बायर इज buying at very small and very small value also. Demands of products in different market. अगर जो प्राइस कभी बढ़ गया कभी घट गया, रॉ मटेरियल कभी बढ़ गया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, तो इसके कारण जो B2B में है ना, बायर जो कस्टमर है वो अफेक्टेड नहीं होते. प्राइस घटेगा बढ़ेगा, उसे तो बनाना है ना, वो तो कंपनी बंद नहीं होगी. उसने एक बार किसी सप्लायर को फिक्स कर लिया तो वो बस फिक्स्ड है. Unless and until there is breach of agreement, they will not discontinue. तो यहाँ पे कस्टमर बिल्कुल फिक्स है और ये जल्दी चेंज नहीं होते, इनइलास्टिक होते हैं. लेकिन B2C में क्या है, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स. अगर आपका प्राइस थोड़ा भी बढ़ा तो आप समझ लो he or she will go to the competitor. Then purchase process. In B2B it is well defined. उनका अपना फॉर्मल प्रोसेस है और जो बेचने वाला है उसको फॉलो करना पड़ेगा. ये ऑर्गेनाइजेशन है उनका, उनको कैसे पैसा लेना है, कैसे पहले गुड सप्लाई करना है कि बाद में करना है, पहले पेमेंट लेंगे बाद में सप्लाई होगा. All these things they are doing in agreement. As per that you have to follow all the things. What are the means of making payment? This is also defined there. B2C, not adhering to any instructions, one-to-one transaction. It is individual customer. They buy it from the grocery shop, from the mall, from online. Payment तो वहाँ देना है और प्रोडक्ट लेना है. So it is totally different. तो बाइंग बिहेवियर क्या है B2B का, एज इन्वॉल्विंग ह्यूज सम ऑफ मनी फॉर हाई स्टॉक सप्लाईज, हेंस इट टेक्स लॉन्गर पीरियड टू टेक डिसीजन. लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो यहाँ पे इनके कुछ सिस्टम होते हैं कि 3 कोटेशन पहले लेंगे, फिर वो उसके इवेल्युएट करेंगे क्या जैसा रिक्वायरमेंट है वो कौन दे रहा है, उसका प्राइस क्या करेक्ट है या जस्टिफाइड है या नहीं, is there any chance of negotiation, and then the top management will say that go ahead. Then only they will come to final decision. It is time taking, but the contract will be very long period. It is not that every time they will be changing the contract. तो ये लंबा समय भी लेता है और लंबे समय के लिए टिका भी होता है. और what is B2C? Small scale transaction for small quantities. यहाँ पे तो हर इंडिविजुअल एक छोटा क्वांटिटी लेता है, छोटा अमाउंट देता है, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ. So many players are, और it is impulse buying. अभी हमें इच्छा होगी हम तुरंत ले लिए, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं. हो सकता है यू कैन टेक टाइम इन टेकिंग डिसीजन. कलर में सपोज गारमेंट इज देयर, you will ask your wife, your girlfriend or somebody that whether this cloth is good for me or not. और या जिसके लिए ले रहे हो उससे पूछोगे. Not much time you are taking. It is impulse buying. Advertising media. In B2B, what is that? No traditional media. Advertised in industry related trade journals or magazines, emails, business websites. या मास स्केल में ऐड देने से कोई फायदा नहीं है ना. अगर आप गियर बॉक्स बनाते हो और ये सप्लाई करना है किसी 4-व्हीलर कंपनी को, तो मास मीडिया में आप क्या करोगे, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देके, तो वेस्ट ऑफ मनी.
और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो व्हाट शुड यू डू? You should do this advertisement. It is not that you should not do advertisement. You do it in the right platform where they are seeing all that. What is that? Trade journals or magazines. Then you can send email directly to them. Business websites are there. In that also you can do advertisement. Or you can address directly to them. You take time and give presentation. Personally, you go there. Then in B2C, what is that? Mass media. बिस्लेरी पानी अब हर कोई पीता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई खास जगह पे ही पीते हैं, बाकी जगह नहीं, है ना। कोल्ड ड्रिंक हर कोई पी रहे हैं, है ना। क्लोथ्स, शर्ट, पैंट, these things that suiting, shirtings, they give now that TV channel also. Digital platform is also there. Social media, in that also you can give. So here you can attract them by giving the emotional, making the emotional attachment. You make a film, small film that will have some emotional touch. कैडबरीज का देखते हो ना एड, हाउ इज इट, कुछ मीठा हो जाए, बट बिफोर दैट सम फैमिली रिलेशनशिप दे शो एंड वेरी टचिंग, नो। इंफॉर्मेटिव, इट शुड बी इंफॉर्मेटिव आल्सो, सो कुछ नॉलेज भी मिले लोगों को, और कुछ ऐसा करो जिससे इंगेज रहे, कस्टमर इंगेज रहे, तो उससे भी एडवर्टाइजमेंट होता है। अब वेबसाइट पे आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दो, क्विज आपने दे दिया, एंड देन ये द कस्टमर इज रिप्लाइंग समथिंग, it is related to his interest, then again you ask something, then you come to the point that we are also doing like that, we are also making product like that, so the customer will be engaged. Market segmentation in B2B, what is it? Markets are divided on the basis of the size of business. यहाँ पे मार्केट सेगमेंट कैसे करते हैं, कितने साइज का बिजनेस है, मतलब 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, क्या है। एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किस तरह का इंडस्ट्री है, किसके लिए आप शीट मेटल आप सप्लाई करोगे, पेंट, आप पेंटिंग का काम करते हो, पेंट का करना है, या फिर कुछ जैसे अब बॉश कंपनी FI बेचती है, FI पंप, तो उसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट है ना, बट दे हैव टू टारगेट द इंडस्ट्री ओनली। ज्योग्राफिकल लोकेशंस के अनुसार भी आप मार्केट सेगमेंट बना सकते हो, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, देन नॉर्थ और ईस्ट इंडिया. What kind of geographical locations are there? Based on that, you can make your plant and then supply. Based on age, gender, that is our B2C. B2C में क्या है, हम मार्केट सेगमेंट कैसे बनाते हैं, डेमोग्राफिक, जेंडर एंड एज, देन उनका परचेजिंग पावर, मतलब उनका इनकम ग्रुप क्या है, मिडिल इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, किस लोकेशन में, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, क्या है, उस बेसिस पे भी आप मार्केट सेगमेंट बना सकते हो। उनकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उसके आधार पे नीड्स क्या है, कल्चर, किस कल्चर में है, उस कल्चर में किस तरह के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, और रिलीजन, किसको आप अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, इस बेसिस पे आप सेगमेंट बना सकते हैं। तो दिस इज इन B2C. सो है ना डिफरेंस, क्वाइट डिफरेंट, नो, B2B एंड B2C. और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो, तो क्लोज इट हियर नाउ ओनली. होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट. आप अपना फीडबैक जरूर देना. आई एम eagerly waiting for your feedback, and again I will come with another new important topic for you of marketing management. Thank you.